To Nifty analysis. Today we are going to analyze the Nifty trades, how the Nifty has been worked, how the Nifty has been traded today. So as I've seen that market has been traded, opened here on the level of 21,020. No, the market has been open 22.0 for. See, I have been marked the market high, and this is low, and this is the upper high, this is the upper lower low. Have been marked these angles. You can say this is the low where buyers came from there, and this is the higher side with the, this is the higher one, which is the low higher one. See, low sellers came from this side and buyers came from this side. Okay, leave it. So market is better in this inside this angles. So uh, let's move this Fibonacci one. Fibonacci we use for only to find the stop loss. Okay, that's it and nothing else. One more time I will just trying to uh, use the Fibonacci levels. Just give me a second please. This is the high you said now. This is the high you set, right? So I'll be going to mark these levels till today. Okay, is there any support are there? अरे क्या हो गया ये? Sorry yaar, today was the first video and it is really very difficult for me, so please, so sorry for this. The first video is literally, people says the first video will be very difficult. Once you comes to know everything, then it will be very easy. So as you could comes to know, okay. See, this Fibonacci one, this you can see bias is coming from this angle. Bias are coming from this angle. Buyers are coming from this angle. Just don't falling down. So it means maybe this is the buying zone. You can say buyers came from here. So this is all buying zone, buying zone, buying zone. See, Fibonacci level is also good, but you comes to know where is an stop loss, where is an order you have to exit, and all these all things. So this is a very important thing. You have to learn about all those things. You know, comes to know where to exit and where to enter the position, where to enter the positions. Huh? One more time, I'm just trying to look this ना. एक बार मैं इसको भी थोड़ा सा हाई करके देखता हूँ, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा भी मिलती है क्या इसकी हाई और लो के अंदर, लेकिन आपको कैसे, ये तो प्रॉपर बैठ गया. एक बार फिर से मैं इसको ना यहाँ पर देखता हूँ, शायद ये मेरे, ये मैं यहीं तक रख सकता हूँ इसको यार. सिंपली बोलो तो मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा हाई एंड लो क्लियरली मुझे यहाँ पर सुबह मिल गए थे. तो मैं इसी के थ्रू आगे चलूँगा, राइट. मैं इसके अगेंस्ट कैसे चल सकता हूँ? चलो मैं इसको लॉक कर देता हूँ अभी के लिए. फ़िलहाल तो अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ. इसको रख के और इसको ना रख के मैं एक बार सीखने के लिए कोशिश करता हूँ. देखो मार्केट ने आज क्लियरली अगर बोलूँ तो मार्केट ने ओपन हुई, उसकी हाई और लो को तो मैं लेवल क्रॉस कर दिया, उसके अपर हाई एंड लोअर लो को भी मैंने ड्रॉ कर लिया. उसके बाद मैंने देखा मार्केट यहाँ तक गई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से वापस सेलिंग आई, फिर यहाँ से वापस बाई आई, फिर सेलिंग आ गई. सेलिंग अच्छी सी आई है क्योंकि मार्केट को जाना है ऊपर, तो फिर सेलिंग आई, सबको निकाली. उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से तो मार्केट ऊपर गई. हमें तो कोई ट्रेड्स नहीं मिली. यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पर कैसे ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड मिल ही रहा है करके. यहाँ पर आने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल होगी. यहाँ पर आने के बाद आपको पता चला होगा कि हाँ कोई ट्रेड्स मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पुट है और वो सपोर्ट काम कर रही है. तो आप यहाँ पर एक चीज़ खोज सकते हो. चलो इसको एक मैं एंगल से ड्रॉ कर ले रहा हूँ. तो यहाँ पर मैंने एंगल कस कर लिया. तो यहाँ पर से बाइंग ज़रूर मिल रही है आपको, एक सिग्नल मिल रही है यहाँ पर. तो सिग्नल मिलेगा नहीं तब तक आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं सकते हो. एक सिग्नल यहाँ पर मिली है बाइंग का. चलो मैं उसको भी ड्रॉ कर ही देता हूँ आपके लिए, ताकि पता भी चले कि हाँ एक 12 बजे से पहले भी कई एंगल मिल रही है कि नहीं. मैंने एक एंगल कर लिया. ठीक है, मुझे मिला तो मैंने की ड्रॉ और मैंने निकल गई. मुझे कोई ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं मिला. इसको तो मैंने, इसको भी मैं
ड्रॉ कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। एक बाइंग यहाँ से लेके मैं इसकी, ये क्यों है, इसको हटाओ, मैं क्या हो रहा हूँ, इसको हटाओ, इसको करो, नहीं इसको भी करो। ये आपका लो हो गया ना, तो लो को तो आपको मार्क करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मार्केट तो यहाँ से ऊपर कर रही थी, तो इस मार्केट को मैंने एंगल को सेलेक्ट कर लिया ताकि चलो मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं देखता हूँ। टाइमिंग most इम्पोर्टेंट है इसमें। मार्केट ने यहाँ पर एक क्लोज की है, फिर यहाँ से सेम जगह पे बाइंग आ गई, तो मार्केट में मेरे को सिग्नल एक तो यहाँ पर मिली। ये गैप अप ओपन हुआ, देखो यहाँ तो एक चीज़ सिग्नल क्लियरली मिल रही है। क्या है मिल रही है, क्या है मिल रही है मालूम? देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो मैं 962 क्यों मैंने ड्रॉ किया मुझे भी नहीं पता चल रहा है। चलो इसको हटा देता हूँ। क्यों, क्या, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये इसलिए मैं ड्रॉ किया क्योंकि मुझे ये लो लगाई है, तो मुझे ये वाला ड्रॉ करना था, इसलिए लगाना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। चलो मैं इसको भी ड्रॉ कर लिया। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई लगाई, हाई लगाई, हाई लगाई, ये तो नीचे से यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी मिली थी, चलो यहाँ से हाई लगाई, फिर मैंने इसको बड़ा किया थोड़ा सा, फिर मैंने इसको भी बड़ा किया। तो वो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली है, यहाँ पर मार्केट ने दो जगह पे हाई लगाई, मार्केट ने नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर यहाँ पर स्पेंड करी, फिर यहाँ पर ऊपर गई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ पर तक गई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ पर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई। तो सेलिंग्स मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है करके बता रहा है क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिली है क्योंकि ये वाली एक आपकी सपोर्ट मिल रही है कि बायर की सपोर्ट, और यही जगह पे सेलर आके रुक जा रहा है। तो ये एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर आपकी बायर की सपोर्ट भी है, यहाँ ये वाली एक, ये वाली एक इसकी बायर की सपोर्ट भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आके मार्केट फर्स्ट टाइम भी किया है, सेकंड टाइम भी किया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग साइड में दिख रही है, जो आपने ग्रैब किया हो तो फाइन, अदरवाइज इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ से ऊपर निकल गए, फिर यहाँ से ऊपर निकल गए, फिर कोई सपोर्ट आपको मिल नहीं रही यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा ना कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है। फिर यहाँ से मार्केट ने अपना हाई लगाई, फिर यहाँ पर से लो आ गई, इस जगह पे आके लो आ गए, इस जगह पे आके लो आएगी, फिर यहाँ पर भी लो आई, लो आई, लो आई, लो आई, एक हाई, एक अच्छी खासी लो लगा दी इधर 22,027, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, फिर यहाँ पर भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर नीचे आई, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए, सेलर ज़्यादा है, क्लियर हो गए। फिर यहाँ पर नीचे आई थोड़ा सा, बायर भी ज़्यादा हो गए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर नीचे आए, ऊपर आए, फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर नीचे ये जब सपोर्ट आपकी ये सपोर्ट बन गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बार टच हुई, यहाँ पर से भी निकल गए, यहाँ पर एक बार टच हुई, सेलर अच्छा खासा सेलिंग आए भाई, फिर से आपने ख़रीदा हो तो फिर बात अलग है, बाकी यहाँ से फिर ऊपर टच करे, बाइंग आने की कोशिश की, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स बोले हम नहीं जाने देंगे। तो 21,069 को दो बार टच किया, तो दूसरी बार टच किया तो भागा के नीचे आके गिरी, नीचे आके गिरी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किया, सेकंड अपॉर्चुनिटी पे नीचे आके गिरी, फिर जब यहाँ पर नीचे आई, इतने नीचे आके गिरी, नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा दी, फिर ऊपर यहाँ से नीचे एकदम लॉन्ग कैंडल गिरा दी, यहाँ 21,052 तक आके गिरी, तो यहाँ से बायस एकदम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल में बायस स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से जो बायस की जोन में से आने के बाद जो मार्केट ने अप लगाई, तो ये लॉन्ग अप लगाई डायरेक्ट एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ, फिर थोड़ा सा सेलिंग इस जगह पे आने के बाद यहाँ पर सेलर्स थे तो सेलिंग फिर से एक बार आई, सेलिंग आई, फिर थोड़ा सा अप जाने को चाहिए, फिर सेलिंग आई, फिर ये वाली एक आपकी सपोर्ट के जैसा काम कर दी और मार्केट को इसने मार्केट को लेके गई ऊपर। तो चलिए, मार्केट में दो अपॉर्चुनिटीज़ आपने देख चुके हैं, एक यहाँ पर मिली है क्योंकि यहाँ पर दो बार एक बार पहली बार टच की, दूसरी बार टच की, फिर नीचे आ गई, तो यहाँ पर एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और यहाँ पर सेकंड अपॉर्चुनिटी, जस्ट बिकॉज सेकंड अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली जस्ट बिकॉज देयर वाज एन मोर ऑफ बायर्स आर वेटिंग फॉर इन दिस लेवल दैट व्हेन इट ब्रेक्स विल बी एंटर, तो यहाँ पर एंटर किया, इट हैज़ बीन मूव्ड अप
buyers are interested only when the price 2106 406, there are buyers are getting in but the most cheapest level it is here 2108. They found it on they found that 2105 more of buyers are buying that product, but I am getting it on 2203. Why do I not buy the product? Even that product is getting very cheaper. In that case, the buyers are always wants to buy in cheap and sell it on high. So they have been found that product here in a very cheaper price, and it went forward up. It went up till that level of 21083. There is a support. There is a resistance which moved down at some point. Then again it has moved up. Then again it went down. Some spend a time again it has moved up. So market we have been founded on two opportunities, and both opportunities are very good. So okay, so we have an opportunities over there. So let's see in future कैसे समझेंगे कैसे करेंगे. We have an more trying. See, options are very risky asset. You have to understand about that how the market will work in this assets. Then only you comes to know. That's it. So let's see. We'll see you tomorrow again. Bye.